से भी मिले, चाहे वो दोस्त हो कि दुश्मन हो कि बीच का हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू आस्क? इन गुजराती आप क्या पूछते हैं? केम छो मजामा? केम छो? मजामा तो उसने बोलना होता है, आपने उसका हम्म। जवाब खुद ही दे दिया, राइट? मतलब यस। आस्किंग आप कैसे हो, हाउ आर यू, ओके। हम्म। सो ये हाउ आर यू बोलने के व्हाट आर द एक्सप्रेशंस यू कैन यूज, वन कैन यूज फॉर आस्किंग वेल बीइंग, जिसको बोलते हैं क्या हाल चाल है। तो वो हाल चाल पूछने के इंग्लिश में एक्सप्रेशंस क्या यूज किए जा सकते हैं, एंड उसका आंसर क्या होता है। नाउ एक चीज, प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड, इफ somebody is asking you, you know, how are you, उसका मतलब ये नहीं होता that you know start telling him your life story. It's just a, you know, like small talk, a very informal way of greeting somebody. Nobody is interested कि आप वाकई कैसे हो. Don't get into आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, आज वो हो गया, आज घर में इससे झगड़ा हो गया, आज उससे ये झगड़ा. Nobody is interested in that. So what are the expressions and what are the responses? If somebody says how are you, तो आपको उसका जवाब देना है उसका. So these are various expressions one can use to ask किसी का हाल चाल. In English it is called asking well-being. Well-being किसको बोलते हैं, और आपका हाल क्या है, केम छो, जिसको आप गुजराती में बोलते हैं. Now there can be very simple reasons. Situation है जिससे पूछा जा रहा है, this fellow can be in various situations. One situation can be the fellow is good, fantastic, no problem. Second situation can be some problem, and third situation can be all problems. Okay, so जिससे पूछा जा रहा है, he can be in different situations. One is no problem, second is some problem, and third is all problem. So what kind of response you can give? ये जो आपको को दिख रहा है हाउ आर यू के सामने ग्रेट, इसका ये नहीं है. हाउ आर यू का आंसर कैन बी एनीथिंग, could be worse, depends upon in which situation the person who has to answer is. So an expression how are you, how is it going, now why is it going on, कैसा चल रहा है नहीं है, it's an expression to ask केम छो, क्या हाल चाल है, how are things, how are things going, how have you been, how do you feel. Now, how goes it? How are you doing? How is life treating you? So all these expressions जो हैं, नॉदर्स जो हैं, they can all be used to ask केम छो in English. तो आपके क्या हाल चाल हैं, ये हिंदी में जिसको हम पूछते हैं, उसके इंग्लिश इक्विवेलेंट ये आपके पास चॉइस है. हमारे पास केम छो की भी बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है, क्या हाल चाल की कोई बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है. इंग्लिश में आपके पास बहुत सारी चॉइस है. ये कितने नौ नौ तो मैंने दे दी है. So how are you? How is it going? How are things? How are things going? How have you been? How do you feel? How goes it? How are you doing? How is life treating you? Now if somebody is asking these, आपका अगर किसी ने पूछा है गेम शो, तो मेरे को गेम शो का जवाब भी देना है. Now in English, the answer depends upon in which situation you actually are and who is asking. Suppose some friend is asking, then you can, you know, give him these kind of answers. But suppose somebody is asking you a meeting for the first time, it's a casual, you know, like stock talk. और क्या हाल चाल है आपके? Then ये जो if so so if bad वाले आंसर उसको नहीं देने हैं आपने. It's only when my friends or people I know personally and closely they ask, then depending upon my situation I can give these kind of answers. अगर मेरे मेरे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब मस्त चल रहा है, then the answer is great, couldn't be better, fantastic.
Now somebody could even say how do you feel, उसका आंसर will be great, couldn't be better, fantastic ही हो सकता है. तो ये तीन के आगे वो तीन, and ये तीन के आगे वो तीन, ये तीन के आगे वो तीन, ऐसा नहीं है. So ये nine expressions can be used in interchangeable manner to ask for game show, and same way your responses हैं depending upon who is asking and in which situation you actually are, you can give answer. Great. तो सर उसमें तो बोलिए. उसमें तो ऐसा हम जब भी किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम या फ्रिक्वेंटली, तो पहले तो क्वेश्चन तो वही पूछते हैं ना, हाउ आर यू. हाँ. हाँ, तो इसमें जो लिखा है हाउ आर यू इफ गुड, ठीक है, फिर एक है इफ सो सो और इफ पेड, तो तीनों के क्वेश्चन तो अलग अलग है ना. नो नो नो, प्लीज डोंट से, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ. प्लीज डोंट से हाउ आर यू का आंसर ग्रेट है. किसी का जिसको आप केम शो बोलते हो, वो केम शो के लिए आप यू कैन यूज एनी ऑफ दीज एक्सप्रेशन. ओके, एनी ऑफ दिस. आप किसी को हाउ आर यू पूछने के बदले यू कैन ऑल्सो से हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर थिंग्स. हाउ आर थिंग्स. दे आर ऑल इंटरचेंजेबल. लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशंस आर ऑल इंटरचेंजेबल. तो हाउ आर यू के आगे जो आपको आंसर दिख रहा है उसका वो आंसर नहीं है. आंसर कैन बी lousy. How are you? Answer can be lousy. How are things? Answer can be I can't complain. So depending on जिससे पूछा जा रहा है उसका एक्चुअली हालचाल क्या है, he will give corresponding reply. बट एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लियर या और एक्सप्लेन करो. नहीं, ओके ओके. Right? So left side expressions are all interchangeable. Right side answers are all interchangeable depending upon the situation. बट अनदर थिंग आई एम रिपीटिंग, अगर आप किसी से ना पहली बार मिल रहे हो तो बिल्कुल पहली बार मिल रहे हो, कभी पहले मिले ही नहीं. वी मीट अवर फ्रेंड्स ऑल्सो एवरी डे, एंड दिन में कब एक बार ऐसा होता है जब उससे उस दिन के लिए पहली बार मिल रहे हैं. बट वी नो दैट गाय. सो इफ यू नो दैट गाय एंड ही दैट वन इज आस्किंग यू हाउ आर यू, या ये आपका हालचाल पूछ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन यू कैन गिव एनी ऑफ दीज आंसर्स. But suppose you are meeting somebody for really first time, पहले कभी मिले ही नहीं उससे, and ये तो stock expression है और आपके क्या हाल चाल है, then don't get into this complaining mode with that fellow. That answer will be only great, could be better, fantastic, no problem. And how are you? Okay, और एक चीज है, we have to be careful about another thing also. Somebody has said how are you, I have given answer, then I also have to ask you and how are you. ठीक है, हमने जवाब दे दिया. हम भी ऐसे करते हैं, किसी ने मेरे से पूछा आपकी क्या हाल है, मैं बोलता हूँ सब ठीक है, और आपके क्या हाल है मैं भी पूछता हूँ. So same thing here. Somebody said how is it going, couldn't be better, and how is it going with you. तो सेम जो एक्सप्रेशन है वो जिसने जवाब दिया उसको भी यूज करना है, रिवर्स पूछना है. तो अगर हालचाल मस्त नहीं है बट बहुत खराब भी नहीं है, देन एंड पर्सन हु इज आस्किंग इज योर फ्रेंड और समबडी यू नो क्लोजली, कुड बी वर्स. मतलब ठीक है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आई कांट कंप्लेन, शिकायत नहीं कर सकता, नॉट बैड. कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, वाकई प्रॉब्लम है, देन आई हैव हैड बेटर डेज, not too good, lousy. So depending upon the situation, condition, the person is, you can give corresponding reply, but only to those who you know personally, who are your friends or relatives. But when somebody you don't know and you are meeting that person for the first time, then don't get into complaining mode. With that person, the answer can be good, fantastic, no problem. And then the person who has answered has also
to ask same question. किसी ने बोला, how are you? You said great, and then you also have to ask, how are you too? How is it going? आपने बोला fantastic. Then you also have to ask, and how is it going with you? Okay, that's good manners. कोई डाउट इसके अंदर? Any doubt? आगे चले? हाँ सर. Okay. For a second. Okay, now here is another very interesting thing. So, can you see this? Short, useful expressions, Yes sir. 20 of them. These are, small, very useful expressions. ये हमारी भाषा में भी होते हैं and English में भी है. Now, many cases, ये जो इनका जो मीनिंग है ये कुछ और होता है and वर्ड से कुछ और मीनिंग दिखता है. सर हाँ सर ये जो फोटोज रखा है ना आपने, हाँ जरा ये फोटो निकाल दीजिए. इसमें मैं नींद में हूँ, मेरी आंखें ही बंद हो गई है. थोड़ा ऊंचा बोलिए. ये जो फोटो आपने रखा है ना इसमें, हाँ ये भी फिर प्रोफाइल में जो रखा है ना, इसकी जगह कोई दूसरा फोटो लगा दीजिए. उसमें मैं नींद में हूँ, मेरी आंखें बंद हो गई. मैं समझा नहीं. ये जो फोटो दिख रहा है ना हाँ अपने जो स्क्रीन पे, हाँ हाँ उसमें इस फोटो को निकाल दो. आपका आवाज बंद हो गया. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे. चलिए मैं एक्चुअली बात कंटिन्यू दिस सर. ये फोटो निकाल दूं क्योंकि इसमें आपका फोटो है. राइट. नहीं, वो मेरा फोटो है पर आंखें बंद हो गई, ये सो गया हूँ मैं. बेसिक थिंग इज ये फोटो निकालनी है, इतना ही है ना. यस सर. ठीक है. ओके, निकल जाएगा. ओके. सो ये ये एक्सप्रेशंस हैं एंड आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज वेयर यू कैन यूज. सो अगर आप इनको, हालांकि आपके पास ये आ जाएगा, ये बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस, आपके पास ये रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी. बट फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक द फर्स्ट वन. दैट्स राइट. आपके हिसाब से इसका क्या मीनिंग होना चाहिए? मतलब इसका मीनिंग, हाँ दैट इज राइट. दैट इज राइट, वो सच है. ये एक्सप्रेशन हम लोग आम जो हमारी बातचीत होती है ना, डेली रूटीन बातचीत, ये सब उसमें यूज होते हैं. मतलब वो जो बोला वो सच है. नाउ इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, हम सपोज समबडी सेइंग मेनी टाइम, एंड मैं उसका जवाब है, मैं क्या बोलता हूँ, हाँ ये ठीक है. यस. यस, ये ठीक है. दैट्स राइट. ये सच है, ये ठीक है. ओके. सो दीज आर द एक्सप्रेशंस वी यूज इन इंग्लिश इन कॉमन एवरीडे यूज. एंड इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हमारी लैंग्वेज में भी हैं. सो आई हियर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? So here, मतलब उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ. मतलब इसका एक्चुअली जो मीनिंग है ना, जो इसका मीनिंग जैसा है, मैंने भी सुना है. अच्छा, ओके, मैंने भी सुना है. हाँ. नाउ एक्चुअली व्हाट, जिसको आप बोलते थे ना एक्सरसाइज, वाई से इसमें से आप कोई भी 5
5 एक्सप्रेशंस ले लें एंड उसको माइंड में घुमाते रहिए. So you know what happens then? Then you learn some thing which you can actually use in your day-to-day life. I suppose so. मतलब मैंने भी वही सोचा. नहीं. Now where we use कोई somebody is asking permission कुछ कर लूं क्या? ये ठीक है क्या? Is it all right? Should I do it? And कई बार हम क्या क्या बोलते हैं? ठीक है कर ले. ठीक है. So this is and the for Englishman it is say I suppose so. कोई कह रहा है कुछ, somebody is saying something and then he wants my confirmation. सही है कि गलत है? Then I say okay, I suppose so. मुझे भी लगता है. जिसका एक्चुअली मीनिंग हो गया मुझे भी लगता है. हम अब बोलते हैं ना अपनी भाषा में दैट्स राइट, ये ठीक है. सो आई हियर, मैंने भी सुना है. आई सपोज सो, मुझे भी लगता है. एंड जो हमारी भाषा में जब आपने लाइक नाउ यू कैन स्टार्ट माइंड में सेंटेंस घुमाइए. मुझे भी लगता है आपने कब यूज किया, कहाँ यूज किया. देन मुझे भी लगता है कि बदले नाउ यू हैव एक्सप्रेशन आई सपोज सो. वेयर हैव यू यूज्ड, मैंने भी सुना है. So wherever you have used this expression, मैंने भी सुना है. Now you have an alternate, so I hear. Okay. अच्छा, then fourth, O I see, इसका मतलब वो तो एक्सप्रेशन हुआ, मैंने देखा. हाँ, मैंने भी देखा. इसका एक्चुअल मीनिंग है अच्छा ऐसा क्या. हम आप हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, somebody said something and I'm surprised to listen to this, and उसकी बोल भाई ऐसा क्या. So it is this, मैंने देखा है नहीं है. वैसे इसकी ट्रांसलेट कर दो तो वो तो होती है मैं देखता हूँ. But the meaning behind this expression is ऐसा क्या. Right? So then yes, by all means. नहीं, इसका नहीं मालूम. आपका जूनियर है कोई and this and you have he has to do some work, but before starting the work he has to take your permission. करना है ना, बॉस की परमिशन लेनी पड़ती है. He comes to you asking for permission and हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है कर ले. कई बार क्या बोलते हैं, बड़े बिंदास कर ले, है ना. So that is yes by all means. This is you are giving permission. इस पर जिस काम की परमिशन मांगने के लिए आप मेरे पास आए हो वो कर लो. मेरे को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. परमिशन ऑब्जेक्शन वाली भी हो सकती है. ओके, मैं परमिशन तो दे रहा हूँ बट खुशी खुशी नहीं दे रहा. एंड कई बार खुशी से दे रहा हूँ और कई बार बहुत ज्यादा खुशी से दे रहा हूँ. सो दिस इज यस बाय ऑल मीन्स. आप ही वो परमिशन खुशी खुशी दे रहे हो. आगे जाके वो भी आएंगे कि आप परमिशन तो दे रहे हो बट खुशी से नहीं दे रहे, वो एक्सप्रेशन भी आएंगे. ओके, देन मच ऑब्लाइज्ड, दिस मीन्स मतलब उसको मैं फॉलो करूंगा. किसी ने आपकी मदद की. राइट, समबडी हेल्प यू. सो आपको क्या बोलना है उसको. आफ्टर यू हैव रिसीव्ड हेल्प व्हाट विल यू से. थैंक यू. Thank you. Okay. This much obliged is another expression to be used in place of thank you. Much obliged, आपका बहुत आभारी हूँ. मैं आपका बहुत आभारी हूँ. हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन ये है, which is really a replacement for thank you very much. Much obliged. And ये नीचे just coming तो simple सी है.
This means just coming. मैं अभी आया. मैं अभी now जहां से अभी आ रहा हूँ. हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ. अभी आ रहा हूँ. Okay, then as you please ये भी सिंपल ही है. As you please. नहीं, उसका नहीं पता चला बस. As you please इसका एक्चुअल मीनिंग है जैसा आपका मर्जी. Somebody wants to do something and I want to give him permission, but बहुत खुशी खुशी से नहीं. बहुत खुशी खुशी से तो ऊपर वाला yes by all means. As you please तो हम कई बार आपका घर में होता ही है, हो जाता है. बच्चा कुछ पूछ रहा है, आप उसको मना तो नहीं कर रहे, लेकिन लेकिन परमिशन आप क्या बोलते हो उसको, जैसी तेरी मर्जी कर ले. राइट ना, वो परमिशन तो है बट वो परमिशन खुशी से नहीं दी जा रही. सो दैट इज एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी. सो इट्स एक्चुअली गिविंग somebody permission to do what that person wants to do, but this permission is not willingly. ये थोड़ा अनविलिंगनेस है इसके अंदर. देन नथिंग मोर. इससे ज्यादा नहीं है. Now we go to somebody's house as guest. तो कुछ लंच या डिनर को सर्व किया जा रहा है. Then the house lady says और कुछ चाहिए आपको, और दो, और चावल दो, और दाल दो, और सब्जी दो. राइट नाउ ये इंडिया इंडियंस में एक अच्छी या बुरी आदत है, उसको चाहिए तो सही, वो तो बोलता है कि नहीं नहीं बहुत हो गया और नहीं चाहिए, है ना. सो दिस इज नथिंग मोर. काफी है, बहुत है, और नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए. So this is when somebody is offering you something and you don't want it. So this is the expression, nothing more, और नहीं चाहिए. Now एक हमारे यहाँ तो जो सर्व कर रहा है उसको भी मालूम है कि इसको और चाहिए, ये तो ऐसे ही बोले जा रहा है, वो डाल भी देता है and हम खा भी लेते हैं, ये भी होता है. But in other countries, foreign countries, they will not do. If you say nothing more, they will not serve you. तो फिर आपको भूखा रहना पड़ेगा वहाँ. Okay, and yes, it's true. So very nice. ये तो सिंपल है. बहुत अच्छा. Very nice, बहुत अच्छा. Yes, this will do. ये हो सकता है. No. Now again, it's like कर सकते हैं. no. It's like nothing more. Now, suppose somebody is, आपने लेटर से किसी से कुछ मांगा, and this one is giving you something, and then he says और चाहिए क्या? तो हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, नहीं इससे काम हो जाएगा, जो आपने दिया या जो मेरे पास है उससे काम हो जाएगा. देन दिस विल डू, इससे काम हो जाएगा, और नहीं चाहिए, इससे काम हो जाएगा. सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं. बाद में मिलते हैं. एंड सी यू टुमारो, कल मिलते हैं. कल मिलते हैं. यू आर वेलकम. आपका स्वागत है. नाउ एक्चुअली इसके मल्टीपल यूजेस हैं. One is when somebody comes to your house, you're welcome. And secondly, when somebody has, you know, you have thanked, somebody has thanked you. आपने किसी की मदद की and that person has thanked you. आपको वो thank you का भी जवाब देना होता है. So this is your welcome is answer for thank you also. Somebody has come to your house, so you're welcoming him. You're welcome. Yeah, somebody is asking permission. Can I come in? Yes, you are welcome. And the other use is, मैंने क्या बताया आपको, you are welcome. Somebody, somebody आप thank थैंक यू you. बोलने के बाद आपको आप thank you का भी जवाब देना है. This थैंक यू is का भी जवाब देना है. you are welcome. And दूसरा होता है no problem. Okay, or it's all right, no problem, you are welcome. So these are answers for thank you.
and we must reply for thank you. We must reply for thank you. We must reply for sorry also. Somebody has said sorry. The common reply is it's all right. No problem. Okay, could you help me? आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सॉरी आई एम नॉट फ्री। ये भी सिंपल है। मैं फ्री नहीं हूँ या मेरे सॉरी पास मैं टाइम नहीं है। मेरे टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ्री नहीं हूँ। इट्स नो यूज। उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। नो, किसी को भी मना करते हैं ना कि भई नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इसका मतलब है इट्स नो यूज का मतलब कि जो आप करना चाहते, somebody says मैं ये करूँ, ऐसा कर लूँ क्या? एंड कई बार हमको लगता है कि जो करना चाहते हैं ना इसका कुछ फायदा नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। दैट इज इट्स नो यूज। ये करने का कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। सो देन दिस इज द एक्सप्रेशन एंड इंग्लिश मैन से इट्स नो यूज। आई बैग योर पार्डन। वो नहीं मालूम सर। आई बैग योर पार्डन। नाउ एक हमने अननोइंगली किसी कुछ प्रॉब्लम दे दी, क्रिएट कर दी, थोड़ा प्रॉब्लम में डाल दिया, क्रिएट कर दी। देन वन इज आई बैग योर पार्डन, माफ कर दो। दिस इज एक्चुअली एन एक्सप्रेशन टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सॉरी। आई बैग योर पार्डन। एक दूसरा, नाउ सपोज आप लेट्स से स्टेशन पे गए टिकट लेने, आपको लाइन क्रॉस करनी है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट से एनीथिंग, सीधा जो है वो घुस जाते हैं ना। वो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज से आई बैग योर पार्डन, मतलब मुझे आप यहाँ से जाने दो, निकलने दो मुझे। वन इज सॉरी के लिए, दूसरा इज व्हेन यू वांट टू put to somebody to some trouble for your benefit, then you use this expression। मतलब आप लाइन क्रॉस करना चाहते हो, लंबी लाइन है एंड देन लोगों के बीच में से क्रॉस करनी है, तो जो देख रहा है आई बैग योर पार्डन, सो दिस फेलो विल अंडरस्टैंड कि आप जगह मांग रहे हो, आप इनको जाने देना चाहिए। देन हाउ मच, ये तो सिंपल है। कितना और कितना और नहीं, बेसिकली आप दुकान में जाके क्या पूछते हो, कितने की है, कितना चाहिए? कितना कितने की चाहिए है? नहीं, भाव कितना है। आपको कुछ चीज चाहिए, आप उसको भाव पूछ रहे हो, रेट पूछ रहे हो, देन हाउ मच, रेट भाव क्या है इसका, या कितना, कितना चाहिए। दुकानदार पूछ सकता है कितना चाहिए, हाउ मच, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, देन हाउ मच दुकानदार विल से। अगर आपने पूछा तो दुकानदार विल से 100 रुपीज a kg, and if he has asked you how much, then say 1 kg, 2 kg, 3 kg, or 5 numbers or 10 numbers, and then I have an appointment। ये तो सिंपल है, हम्म, मुझे किसी से मिलना है, आई हैव, मिलना है। या मुझे किसी से मिलना है। सो आई हैव अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा तो नहीं है, 500 ऐसी एक्सप्रेशन है मेरे पास। एंड दीज आर दी कॉमन, जो इसको मतलब एवरीडे लैंग्वेज, एक्चुअली एवरीडे लैंग्वेज की 30 to 40% जो हमारी लैंग्वेज है, सेंटेंसेस हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो इसमें 5-7 कहीं लिख लें, by your pocket diary, write some sentences and simply keep repeating them in the mind, that where I have to use that's right का गुजराती में क्या मीनिंग है, yes by all means गुजराती में क्या मीनिंग है, and not just no meaning, start using। and सबको इनके मीनिंग मालूम होते हैं, even if somebody doesn't know meaning, when you use something, किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये सेंटेंस यूज कर रहे हो, सुनने वाला समझ लेता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। ओके, somebody is serving you food and this housewife is asking आपको और चाहिए, ये दूं वो दूं, and you say nothing more, उसको सिर्फ नथिंग का मीनिंग ही मालूम है, she still understand आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट को यूज करके सेंटेंसेस का मीनिंग निकालना। ओके, सो दिस इज योर ओके सर। शॉर्ट यूजफुल सेंटेंसेस। कोई डाउट इसके बारे में?
No, sir. No doubt. Great. देखें मेरे और 2-3 मिनट में होने वाला पिटारे में क्या पढ़ा हुआ है. Asking for well-being, short useful sentences. चलिए, okay. This is simple. I think we should be able to finish this in 2-3 minutes itself. So scrambled words हैं. So simply when you think you have unscrambled, simply speak. He like an acted expert. He like He he act like an expert. दोबारा से बोलिए. He act हाँ. like an expert. Except that you're right. Except the word is not act; it is acted. Hmm. He acted like an expert. That's right. Okay. Second one. Emma adjusted in her new classroom. That's right. Absolutely right. Except that it's not Emma, it is Emma. An English fellow will pronounce Emma. that as Emma. Emma adjusted in her new classroom. That's great. Okay. Third. My dad helped me. My dad helped me out Hmm. with my task. That's right. इसमें थोड़ा Absolutely right. My dad helped me out with my task. That's great. Okay. Then. My wife's birthday is in April. That's right. My son wakes up at 7 o'clock. Now that word is not. It wakes up. My son wakes up at 7 o'clock. Wakes up. Wakes up. Right. Good. Chaliye. So that was unscramble the jumbled words. So I think that should be enough for today. Okay, sir. So that is that. वो मैं फोटो निकाल दूंगा उसकी चिंता मत करिए. I'll remove that. No problem. Okay, sir. अब उसमें इशू क्या है उसके अंदर? सर मेरी आंखें बंद हो गई मैं सो